So we'll begin now. We are doing antennas and radiating systems. And this is the course outline that we have been following. We are here in module 6. We started with basic electromagnetic theory, where we discussed Maxwell's equations, electrostats, and magnetostats. Then we discussed the introduction to antenna theory and radiating systems. And we started with radiation fields of elemental dipoles. We did electric and then magnetic. So you remember, we started with the defining the source, the charge density, current density, charge or current. Then we found the auxiliary potentials, uh, vector magnetic potential or the scalar electric potential A and V. Found the uh, electric field or magnetic field and vice versa. Then we discussed near field and far field, uh, uh, expressions for the electric and magnetic field, and from far field then we move to antenna patterns and antenna parameters. In far field we discussed main lobe, side lobe, uh, beam width, directivity, gain, all these things in pattern and parameters. Then we discussed thin linear antennas. Over here, we use the expressions for Hudson dipole, use the delta electric and delta magnetic field to find the electric and magnetic field. Then again, from the discussions from patterns and parameters, we discussed on different wavelengths. We found out the, let's just say, pattern and parameters. Just all those things, main lobe, directivity, beam width, and everything. Then we discussed the antenna arrays. Over here, we found in patterns and parameters, this was the f theta was uh, the pattern function was the important thing that we derive. Then in antenna arrays, we use the knowledge of we yeah. So we came up with a generic electric field expressions, magnetic field expression, and then we for two element arrays we found out the antenna, sorry, the array function, and then we saw that the array function multiplied by the element function, which was the pattern function before. This thing was now the pattern function. Then we in general inform array, we use the GP sum to get the array function. Then the previous classes we have been discussing receiving antennas, and in all this discussion we discussed two things: effective length and radiation resistance. And over here in receiving antennas, we made equivalent circuits to show that the transmit and receive
pattern are same. Next, we discussed effective area, and today we'll discuss backscatter cross section. So, effective area is for receiving antennas. So, it has some load. Now, incident wave can be on an antenna, but it could also be on any object. Now, any object for antennas, it will deliver it to load, but any object which is not an antenna, it will not deliver power to any load. It will scatter it. That's the discussion today. That's which is called backscatter cross section. So for antennas, if they are yeah, if a wave in uh, and अगर वेव एंटेना पे गिरता है तो वो लोड पे डिलीवर होता है, तो उसके लिए एक इफेक्टिव एरिया होता है। और अगर कोई जो इंसिडेंट वेव है वो एंटेना पे नहीं किसी भी रैंडम ऑब्जेक्ट पे गिर रहा है, तो वो क्या स्कैटर करेगा। तो उसके लिए बैक स्कैटर क्रॉस सेक्शन होता है क्वांटिटी, कि अगर इस ऑब्जेक्ट पे वेव गिर रहा है तो कितना रेडिएट हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो उसको अगर हम लोग को ऐसा मेजर करना चाहेंगे, कुछ क्वांटिफाई करके कुछ वैल्यू बताना चाहेंगे, तो वो बैक स्कैटर क्रॉस सेक्शन होगा। तो इफेक्टिव एरिया इज फॉर एंटेना, बैक स्कैटर क्रॉस सेक्शन इज फॉर अदर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो अब बाकी ऑब्जेक्ट्स के लिए बैक स्कैटर क्रॉस सेक्शन होता है। इसको अभी हम लोग देखेंगे कि इसको रेडार क्रॉस सेक्शन भी बोलते हैं। आरसीएस, रेडार क्रॉस सेक्शन भी इसी को बोलते हैं। ओके, तो ये बेसिकली रिवीजन हमने, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे प्रोसीड कर रहे हैं कोर्स के लिए। अब पिछली क्लास का डिस्कशन कर लेते हैं। आप ये कोर्स होने के बाद आप आई गेस आप लोग एंटेना थ्योरी बाय बलानिस पर करते होगे अपने यूनिवर्सिटी के लिए कोर्स में। इस कोर्स के बाद आप इसको पढ़ सकते हो, बहुत डिटेल में लिखा है चीज़ें। और अभी हम लोग ये 11-6 मॉड्यूल आज फिनिश कर देंगे। नेक्स्ट क्लास 11-7 करेंगे हम लोग। तो पिछले क्लास में एक्चुअली हमने ये देखा था डायरेक्शनल पैटर्न के बारे में। तो एक बार क्विकली रिवाइज करते हुए कि ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट था ट्रांसमिट रिसीव सिस्टम के लिए। ये हमारा नीचे अगर राइट साइड में देखोगे तो टू कपल्ड एंटेनास का सिस्टम था ना। ए ट्रांसमीटर था, बी रिसीवर था। फिर बी ऐसे मूव कर रहा था कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो। तो इसके लिए हम लोग एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाए थे। फिर हमने बोला कि Z12 बहुत छोटा वैल्यू है, तो ट्रांसमिटिंग एंड पे Z12 जीरो हो जाता था। रिसीविंग एंड पे उसको हम लोग एक वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस करते थे। और फिर हम लोग इन दोनों सर्किट्स को सॉल्व करके हमने ये वोल्टेज सोर्स का इंफॉर्मेशन भी निकाला। ये Z11 इक्वल टू ZA बताया, ZG इज इक्वल्स टू Z22 इक्वल टू ZB बताया। VOC का एक्सप्रेशन लिखा, पावर एट लोड का कैलकुलेट किया। और हमने शो किया कि पावर एट लोड जो कपलिंग है उस पर डिपेंड करता है। और अगर ए की जगह बी और बी की जगह ए कर देंगे तो हमें डायरेक्शनल पैटर्न रेसिप्रोसिटी थ्योरम से Z12 इक्वल टू Z21 से हमें पता चलता है कि पैटर्न सेम होगा। तो ये हमने पिछले क्लास में देखा। फिर लास्ट क्लास में हमने इफेक्टिव एरिया का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। तो हमने रिसीविंग एंड वाला सर्किट लिया। उसमें पहले तो हमने इफेक्टिव एरिया का डेफिनेशन देखा, which was ratio of average power delivered to match load to the time average power which is incident। तो पावर एट, अगर हमारे ये जो लोड है, इस लोड पे कितना पावर डिलीवर हो रहा है वर्सेस यहाँ पे कितना पावर इंसिडेंट था। तो इफेक्टिव एरिया इज इक्वल्स टू पावर एट लोड बाय
पावर इंसिडेंट इज इक्वल टू आपका पॉइंटिंग वेक्टर। पावर एट लोड निकालने के लिए हमारे पास क्या तरीका है, वोल्टेज एट लोड करंट एट लोड मल्टीप्लाई करके ये एक्सप्रेशन मिल जाता है। तो पावर एट लोड हमें नोन है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए अ, ये आपका जो ZL है उसको RB माइनस JX भी लिखेंगे। तो वो Z22 के इक्वल हो जाएगा, ZL ZG के इक्वल हो जाएगा। तो इसका इमेजिनरी पार्ट गायब हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में 8 RB मिल गया था यहाँ पे। तो ये सब हमें इन दोनों एक्सप्रेशन से पावर एट लोड मिला। पावर हमने जो भी इंसिडेंट था वो ये है हमारा, जो पावर ट्रांसमिटेड था। तो ये हमें पावर एट लोड बाय पावर ट्रांसमिटेड का एक्सप्रेशन मिल गया। ठीक है, तो ये पावर एट लोड बाय पावर ट्रांसमिटेड। और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि पावर जो रिसीव हो रहा है पावर ट्रांसमिटेड डिवाइडेड बाय द टोटल सरफेस इनटू द गेन इन दैट डायरेक्शन। तो पी एवरेज निकाल लिया यहाँ से हमने, पी एवरेज इन टर्म्स ऑफ पावर ट्रांसमिटेड, पावर एट लोड बाय पावर ट्रांसमिटेड का एक्सप्रेशन अब ये है हमारे पास। इन दोनों इसको और ये वाला पावर एट लोड बाय पावर ट्रांसमिटेड का, ये दोनों के एक्सप्रेशन को यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमें Z21 का एक्सप्रेशन मिल गया। और Z12 को सिमिलरली लिख सकते हैं हम लोग ए और बी को इंटरचेंज करके। तो Z12 Z21 मिल गया, इनका रेशियो लेंगे तो हमें पता चला कि जो डायरेक्टिव गेन बाय द इफेक्टिव एरिया कांस्टेंट होता है किसी भी एंटेना के लिए। दिस इज यूनिवर्सली ट्रू। ये रेशियो ऑफ डायरेक्टिव गेन बाय इफेक्टिव एरिया फॉर एनी एंटेना इज अ कांस्टेंट। तो ये हमने फर्स्ट हाफ में डिस्कस किया था पिछले क्लास के एग्जांपल सॉल्व करने से पहले। इसमें से किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, 2 मिनट के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं। इससे डाउट नहीं है तो हम लोग कल का डिस्कशन को रिविजन कंप्लीट करते हैं। फिर हम लोग एक एग्जांपल सॉल्व कर रहे थे हर्ट्ज डाइपोल को लेके हमने। अब जब हमें पता है कि किसी भी एंटेना के लिए डायरेक्टिव गेन बाय इफेक्टिव एरिया का रेशियो कांस्टेंट है, हमने सब बहुत सारा डिस्कशन किया है हर्ट्ज डाइपोल पे। तो हर्ट्ज डाइपोल के लिए हम लोग ये क्वांटिटीज कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें वो जो रेशियो है उसका जो रेशियो कांस्टेंट होता है तो उस कांस्टेंट का वैल्यू मिल जाएगा। एलिमेंटल डाइपोल के लिए हमने बोला कि ई आई इंसिडेंट फील्ड है, तो पी एवरेज निकाल लिया, पावर एट लोड निकाला, इसका रेशियो लिए तो इफेक्टिव एरिया मिल गया हमें। ठीक है, तो हम लोग हर्ट्ज डाइपोल के लिए इफेक्टिव एरिया निकाल लिए। अब इस चीज को हम लोग, अब डायरेक्टिव गेन हमें पता है और पहले से निकाला हुआ हमारे। तो डायरेक्टिव गेन को हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड किए 4 पाई बाय लैम्डा स्क्वायर से। तो ये सब क्वांटिटी सेपरेट हो गया, और जो क्वांटिटी सेपरेट हुआ ये हमारा इफेक्टिव एरिया के बराबर था। तो डायरेक्टिव गेन और इफेक्टिव एरिया का रिलेशन मिल गया और हमें ये कांस्टेंट मिल गया। तो अब हमें पता चल गया कि फॉर एनी एंटेना, किसी भी एंटेना के लिए डायरेक्टिव गेन इज इक्वल्स टू 4 पाई बाय लैम्डा स्क्वायर टाइम्स इफेक्टिव एरिया। ये थीटा फाई का डायरेक्शन को हमें ध्यान रखना है कि किस डायरेक्शन में हम लोग बात कर रहे हैं।
तो हमें वो कांस्टेंट का वैल्यू मिल गया। और फिर नेक्स्ट हमने क्या किया कि अब हमें इफेक्टिव, और फिर हम हमारा जो डिस्कशन था, अब एक चीज था कि हमने इससे पहले इफेक्टिव एरिया से पहले हमने इफेक्टिव लेंथ ही देखा था। अब इफेक्टिव एरिया है और इफेक्टिव लेंथ है, अब इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप कैसा है। तो अगेन हम लोग जो पावर एट लोड है उसको इफेक्टिव लेंथ के टर्म में एक्सप्रेस किए, और हमारे पास जो पावर एट लोड है अ, उसको ये इफेक्टिव, या ये इफेक्टिव लेंथ के टर्म में एक्सप्रेस किए, और फिर पावर एट लोड एज नॉर्मली कैलकुलेट किए, और रेडिएशन रेजिस्टेंस का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए। तो ये करने के बाद हमें ये जो इफेक्टिव एरिया वाला एक्सप्रेशन है इसको यूज किया, और इन दोनों को यूज किया, तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा, इफेक्टिव एरिया इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव लेंथ। तो इनको कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड वाली क्वांटिटी सेम है, राइट हैंड साइड वाली क्वांटिटीज को अगर कंपेयर कर रहे हैं और इनको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, तो हमें इफेक्टिव एरिया इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव लेंथ मिल जाएगा। तो आप डायमेंशंस भी देखोगे तो ये अगर ये एल स्क्वायर है तो ये भी एरिया भी एल स्क्वायर होता है। तो 30 पाई अपॉन आर का रिलेशनशिप है, लेकिन ये वाला हर्ट्जियन डाइपोल के लिए है। ठीक है, ये हर्ट्जियन डाइपोल के लिए हमने ये तो ये स्टैब्लिश भी किया इफेक्टिव लेंथ और इफेक्टिव एरिया का रिलेशनशिप। तो लास्ट क्लास में हमने इतना कवर किया था। इसमें से अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। 1 मिनट यहाँ पे भी रुक जाते हैं, और यहाँ पे डाउट नहीं है तो हम लोग अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो देखेंगे वो है बैक स्कैटर क्रॉस सेक्शन, और जिसको हम लोग रडार क्रॉस सेक्शन भी बोलते हैं। उसका डिस्कशन कंप्लीट करके हम लोग फिर आज का क्लास एंड करेंगे। हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग बैक स्कैटर क्रॉस सेक्शन देखेंगे, और बहुत बहुत सिंपल सा ही टॉपिक है आज का, मतलब और बहुत ही कम मटेरियल भी है, तो बस थोड़ा सा सुनना है आपको। अभी क्या है कि बैक स्कैटर क्रॉस सेक्शन जो है इसका डेफिनेशन सच थोड़ा लेंदी है, ये पूरा पार्ट आपको पढ़ना होगा। तो पहले तो इफेक्टिव एरिया के बारे में देखते हैं। इफेक्टिव एरिया और बैक साइड क्रॉस सेक्शन में कंफ्यूज नहीं होना है। इफेक्टिव एरिया रिलेट करता है पावर रिसीव बाय मैच लोड किसी इंसिडेंट पावर डेंसिटी के लिए। ठीक है, पावर रिसीव बाय मैच लोड फॉर इंसिडेंट पावर डेंसिटी। ठीक है, तो ये दिस होल्ड्स ट्रू फॉर एंटेनास। एंटेनास में हमारे पास लोड होता है, तो ये उस केस में हमारे पास इफेक्टिव एरिया होता है। बट अगर कोई इंसिडेंट वेव है जो एक पैसिव ऑब्जेक्ट को हिट कर रहा है, जो केवल स्कैटर कर रहा है विदाउट एब्जॉर्बिंग एनी एनर्जी, हम उसमें उस केस में बैक स्कैटर क्रॉस सेक्शन या रेडार क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। मतलब एंटेना में क्या था, मान लो हमारे पास कोई ऐसा हॉर्न एंटेना है, वेव आया, दिस विल डिलीवर इट टू द लोड। तो ये वेव जो एनर्जी है ये ट्रांसफर हुआ लोड पे। बट अगर कोई ऐसा कोई एक रैंडमली शेप्ड ऑब्जेक्ट है, वेव आया, वो क्या करेगा, वो बस स्कैटर कर देगा उसको,
उस पे इंसिडेंट होगा और रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इसमें कोई लोड नहीं लगा है, तो कोई पावर ट्रांसफर वगैरह नहीं हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है, बैक स्कैटर कर रहा है। जो पावर आया उसको रिफ्लेक्ट करके वापस इधर-उधर स्कैटर कर दिया। तो उस केस में जिसका जो इसको अगर क्वांटिफाई करना है कि कौन कोई ऑब्जेक्ट कितना बैक स्कैटर करता है, तो उसके लिए हम लोग एरिया के टर्म्स में बैक स्कैटर क्रॉस सेक्शन डिफाइन कर देते हैं। तो बैक scatter cross section of an object is the equivalent area that would intercept the amount of incident power to produce the same scattered power density at the receiver side if it's scattered uniformly। तो ये डेफिनेशन क्या कहता है कि अभी क्या था, ये ऑब्जेक्ट था, इस पे इंसिडेंट वेव आया और इसने स्कैटर किया। बट जस्ट इन केस अगर इंसिडेंट वेव नहीं होता, अब ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास यहाँ पे, ऐसे इंसिडेंट फील्ड सा है, रिफ्लेक्ट किए, अब ये स्कैटर कर दिया इसको हर जगह, और हम लोग एक रिसीवर पॉइंट पे हमने जो स्कैटर्ड वेव है वो देखा, तो हमें स्कैटर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है। लेकिन अगर ये इंसिडेंट वेव नहीं होता और ये ऑब्जेक्ट खुद रेडिएट करता, तो भी तो कितना इंसिडेंट पावर हो रहा होता, मतलब अगर ये ई आई इंसिडेंट हुआ और यहाँ पे ई स्कैटर्ड हम लोग मेजर किए, अगर ई आई नहीं है और हमें ये रिसीवर पॉइंट पे ई एस मिल रहा है, तो इसका जो और ये यूनिफॉर्मली रेडिएट कर रहा होता, तो कितना, तो भी ईएस मिल रहा होता, तो उसके लिए कितना ये एरिया होता है, इफेक्टिव एरिया होता, अगर ये रेडिएटिंग ऑब्जेक्ट होता। उस तरह से देखो कि अगर बिना इंसिडेंट के अगर ये ऑब्जेक्ट ही रेडिएट करता, तो कितना फील्ड, उतना ही फील्ड अगर रिसीव होता, तो इस जो ऑब्जेक्ट है उसका कितना इफेक्टिव एरिया है, वो चीज बैकस्कैटर क्रॉस सेक्शन के बराबर होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पैसिव ऑब्जेक्ट ही अगर रेडिएट करता उतना फील्ड, पैसिव ऑब्जेक्ट का इफेक्टिव एरिया कितना होता। तो वो क्वांटिटी बैक्स कटा क्रॉस सेक्शन है। थोड़ा सा कॉन्वोल्यूटेड तरीका है डिफाइन करने का, बट अगर आप ये समझ नहीं भी आ रहा है तो सिंपल सा ये रिलेशनशिप है, ये देख लेते हैं। अगर इंसिडेंट पावर पी आई है और स्कैटर्ड पावर पी एस है, बैक स्कैटर क्रॉस सेक्शन जो हमें चाहिए उसको सिग्मा बी एस बोल दिए, और आर डिस्टेंस है हमारा ऑब्जेक्ट, और जहां पे भी हम लोग ये डेटा रीड कर रहे हैं, ये रिसीवर का, ऑब्जेक्ट और रिसीवर का इंसिडेंट फील्ड कहीं से भी आ रहा हो, हमारे जो ऑब्जेक्ट है और रिसीवर के बीच का डिस्टेंस आर है, उसको ऐसे डिफाइन करते हैं। जो बैक स्कैटर क्रॉस सेक्शन है वो मल्टीप्लाइड बाय द इंसिडेंट जो पावर आ रहा था वो, डिवाइडेड बाय द टोटल वो सरफेस एरिया 4 पाई r² इज इक्वल्स टू द स्कैटर्ड पावर इस पॉइंट पे। तो क्या हो रहा है कि अगर सिग्मा बी एस हमारा अगर सोर्स की तरह काम कर रहा होता और इंसिडेंट पावर के साथ, तो ये हमारा जो सोर्स हो गया है, अब क्या है, इंसिडेंट पावर इनटू बैक स्कैटर क्रॉस सेक्शन इज द न्यू सोर्स डिवाइडेड बाय द टोटल उसका सरफेस एरिया आर डिस्टेंस पर, अगर हम लोग सरफेस निकालेंगे तो वो हमारा स्कैटर्ड पावर मिल जाएगा हमें। तो अब इसको हम लोग रीअरेंज करेंगे, तो सिग्मा बैक स्कैटर इज इक्वल्स टू 4 पाई r² टाइम्स स्कैटर्ड पावर बाय इंसिडेंट पावर। तो ये हमें रिलेशनशिप मिल गया। तो सिग्मा बैक स्कैटर जो है हमारा बैक स्कैटर क्रॉस सेक्शन, ये हमारा ये क्वांटिटी हो गया। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि इस रिलेशनशिप से हमें लगेगा कि बैक स्कैटर क्रॉस सेक्शन आर स्क्वायर जो डिस्टेंस है उसके प्रोपोर्शनल दिख रहा है हमें, कि अगर हमारा आर बढ़ेगा तो बैक स्कैटर बढ़ेगा, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें ध्यान रखना है कि जो इंसिडेंट पावर है ये और सॉरी, जो ये स्कैटर्ड पावर है, ये स्कैटर्ड पावर खुद आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है? तो वो कैंसल हो जाएगा, ये स्कैटर्ड पावर आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है और ये आर यहाँ पे आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड है। ऐसा कह रहे हैं कि पी एस इज प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और तो सिग्मा बी एस क्या होगा, सिग्मा बी एस इज इक्वल्स प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर इंटू 1/r², तो ये कट जाएंगे, तो कोई डिपेंडेंसी नहीं होगा डिस्टेंस का। और ये भी नोन है कि जो बैक स्कैटर है या फिर रेडार क्रॉस सेक्शन होता है किसी ऑब्जेक्ट का ना, वो फिक्स होता है गिवन फ्रीक्वेंसी और पोलराइजेशन के लिए। वो
ऑब्जेक्ट का इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, वो इंसिडेंट वेव पे बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है, वो पोलराइज़ेशन वगैरह पे डिपेंड करेगा, बट ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है? और एक ये डेफिनेशन नहीं, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना रेडार क्रॉस सेक्शन के रिलेटेड। द द बैकस्कैटर क्रॉस सेक्शन इज द मेजर ऑफ डिटेक्टेबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय रेडार। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडार का अगर आपको फुल फॉर्म याद नहीं था तो रेडार इज एन एक्रोनिम, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो हाँ, जो बैकस्कैटर क्रॉस सेक्शन है, ये डिटेक्टेबिलिटी बताता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, आपको अगर न्यूज़ वगैरह याद होगा तो बोलते हैं कि हमारा प्लेन का आरसीएस घटाना है हमें, या किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ को छुपाना है रडार से, तो हम लोग उसका आरसीएस घटाते हैं, रडार क्रॉस सेक्शन घटाते हैं। अगर वो कम हो जाएगा, तो रडार में नहीं दिखेगा। आँख से दिख रहा हो अलग बात है, बट आरसीएस कम होना चाहिए। जैसे थर्माकोल लोगे आप, कितना बड़ा भी थर्माकोल ले लो आप, वो तो हमारे जो रेडियो रडार वाले जो फ्रीक्वेंसीज़ होते हैं, उसपे वो इनविजिबल ही होता है। अब थर्माकोल वगैरह नहीं आता है, वुड वगैरह भी मुश्किल से आता है, ठीक है? तो ये सब हमारे जो गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है, जिस पे कम्युनिकेशन या रडार वगैरह करते हैं, उसपे उतना विजिबल नहीं होता, ठीक है? वैसे ही अगर आप मेटल ले लो, छोटा-सा मेटल का भी ना, अगर आप आपका जो फ़ोन है, जिसमें जितना मेटल है, उसका आरसीएस ना आपके घर का सोफ़ा और फर्नीचर से भी ज़्यादा होगा। आपका सोफ़ा फर्नीचर नहीं आएगा, बट अगर एक छोटा-सा चाबी रखा हुआ है, वो आपके रडार में डिटेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका आरसीएस ज़्यादा होता है। तो साइज़ पे भी डिपेंड उतना नहीं करता जितना मटेरियल का जिस मटेरियल से बना उस पर डिपेंड कर रहा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि वही चाबी के ऊपर अगर हम लोग ऐसा कोई ऑब्जेक्ट ऐसा कुछ मटेरियल लगा दें, या फिर कोई भी लोहा का चीज़ के ऊपर अगर हम लोग को ऐसा कोटिंग कर दें, जो कि वेव्स एब्ज़ॉर्ब कर लें, तो क्या करता है वो आरसीएस घटा रहा है उस चीज़ का। तो ये पूरा टेक्नोलॉजी पे काम चल रहा होता है कि हम लोग कैसे आरसीएस घटाएँ। तो आरसीएस बेसिकली किसी या ये जो बैकस्कैटर क्रॉस सेक्शन या रडार क्रॉस सेक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट का डिटेक्टिबिलिटी बताता है कि हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कि नहीं। और ये जो टर्म रडार क्रॉस सेक्शन इसीलिए इसको यूज़ भी करते हैं बैकस्कैटर क्रॉस सेक्शन के लिए। और ये जो है ना, ये आरसीएस दिस इज़ मेजर ऑफ अ, जैसे कंपोजिट मेजर डिपेंडिंग किस-किस चीज़ पे, ज्योमेट्री कैसा अरेंज्ड है आपका ऑब्जेक्ट। उसका मतलब अगर कोई चीज़, आपका रेडार अगर वेव भेज रहा है और आपका पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसको आप ऐसा ओरिएंट कर सको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इंटरफेयर ना करे और उसके ऊपर-नीचे से पार हो जाए मिनिमम इंटरफेरेंस के साथ, तो आपका आरसीएस घट जाएगा। तो आप कैसे घुमा-फिरा के रख रहे हो ऑब्जेक्ट को, वो ज्योमेट्री ओरिएंटेशन एक ही बात हुआ। कॉन्स्टिट्यूटिव पैरामीटर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, जैसे कि अब ये इसका जो एप्सिलॉन और म्यू है, सिग्मा है, बेसिकली कंडक्टिविटी, परमिटिविटी वगैरह, तो उस पे डिपेंड करेगा। तो कॉन्स्टिट्यूटिव पैरामीटर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, मेटल है तो यूजुअली ज़्यादा होता है आरसीएस, एंड द फ्रीक्वेंसी एंड द पोलराइजेशन ऑफ द इंसिडेंट वेव। अब ये भी है कि अगर आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर दो, तो जैसे कि लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी में कुछ-कुछ ऑब्जेक्ट्स बेटर आप रीड कर सकते हो। लो फ्रीक्वेंसी में हो सकता है कि वो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हो जाए, हाई फ्रीक्वेंसी में डिटेक्ट हो जाए। तो फ्रीक्वेंसी पे भी और पोलराइज़ेशन पे भी ऐसा हो सकता है कि आपका ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है कि एक पर्टिकुलर पोलराइज़ेशन के लिए वो गायब हो जाता है। हॉरिज़ॉन्टल या वर्टिकल में वो दिखेगा नहीं, दूसरे वाले में आपको अरेंज हो जाएगा। तो पोलराइज़ेशन, तो इन मल्टीपल चीज़ों पे डिपेंड करता है आरसीएस। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से, बट अभी के केस में हम लोग सिम्प्लिफाइड डिस्कशंस कर रहे हैं और एक एग्ज़ाम्पल भी देखेंगे। अभी वाटर ड्रॉपलेट्स का आरसीएस निकाल के देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो मटेरियल जो था बैकस्कैटर क्रॉस सेक्शन का डेफिनेशन वगैरह, ये इतना ही है। इसके बाद एक एग्ज़ाम्पल सॉल्व करना है, तो अगर कोई डाउट है तो अब पूछ सकते हो आप। एग्ज़ाम्पल सॉल्व करेंगे, उसमें एक्चुअली बहुत सारा पुराना चीज़ रिकॉल करना होगा, स्पेशली बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से। तो आपको थोड़ा-सा जो भी फ़ॉर्मूला अगर उसमें आपको याद ना आ रहा हो अभी फ़ॉलो करने में, तो भी मान लेना कि हमें ये पता है, और फिर आप रिविज़िट कर लेना टेक्स्ट बुक में कि ओके ये पोलराइज़ेशन का और डाइपोल मोमेंट का जो फ़ॉर्मूलाज़ होता है,
वो आप एक बार वापस जाके देख लेना, वो यूज होंगे अभी। तो आई एम गेसिंग दिस इज ये बैक क्रॉस सेक्शन और ये सब थोड़ा डेफिनेशन वाइज तो रिलेटिवली सिंपल ही है। अब इसको यूज कैसे करना होगा, क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, वो देख लेते हैं। तो अभी ये एग्जाम्पल है बुक से ही, बुक में ये एग्जाम्पल है, आप बुक में भी रीड कर सकते हो। बाद वही हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन क्वेश्चन थोड़ा केस सिनेरियो बना के पूछा गया है। जैसे कि एक यूनिफॉर्म प्लेन वेव है विद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये हमें दिया हुआ है। अभी ये ध्यान रखना है कि ये एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। impinges on a small dielectric sphere of radius b, much smaller than the lambda। तो जो हमारा फ्रीक्वेंसी है उससे हमें लैम्डा पता होता है, और हमें लैम्डा पता है तो लैम्डा मच ग्रेटर है हमारा जो स्फेयर है बी। तो ये अगर ये स्फेयर है हमारा जिसका रेडियस बी है, तो दिस इज अगर, और हमारा जो वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ हमारा लैम्डा इज मच लार्जर। ठीक है। और हमें मटेरियल के बारे में बता दिया है कि वो मटेरियल डाइलेक्ट्रिक स्फेयर है, तो उसका जो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है या रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है। डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर है, एज शोन इन दिस फिगर। अज्यूम करना है पोलराइजेशन प्रोड्यूस्ड इन assume the polarization produced in the sphere to be same as produced in a uniform static electric field EI and given by। तो हमारे लिए काम आसान कर दिया ने, हमें पोलराइजेशन का एक्सप्रेशन क्वेश्चन ही दे दिया है कि पोलराइजेशन कैसा क्रिएट हो रहा है। इनने बोला है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंसिडेंट हो रहा है इस स्फेयर पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पोलराइजेशन क्रिएट कर रहा है। तो पोलराइजेशन का एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक परमिटिविटी के ये इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म में दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या है, बैकस्कैटर क्रॉस सेक्शन निकालना है हमें। उसके बाद हमें डिटरमाइन करना है, इसी में अगर ये एक रेन ड्रॉप होता और डायमीटर बता दिया, फ्रीक्वेंसी बता दिया, और डायरेक्टरी कांस्टेंट बता दिया वाटर का 55, इस जिस भी फ्रीक्वेंसी इस 15 गीगाहर्ट्ज पे, तो उस केस में हमें वैल्यू निकाल के बताना है सिग्मा ये बैकस्कैटर क्रॉस सेक्शन का। तो अगर पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो दूसरा वाला बस वैल्यू पुट करना है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अभी लिखा हुआ है कि सिंस द इंड्यूस्ड पोलराइजेशन वेक्टर P is constant within the electric sphere, the total electric moment induced क्या होगा, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब P क्या है, लिखा था कि इज कांस्टेंट विद इन दिस स्फीयर। तो अगर हम लोग पोलराइजेशन इनटू वॉल्यूम कर देंगे तो हमें डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा। और वॉल स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4 पाई बाई 3 पाई बी क्यूब, जो बी रेडियस है। तो हम लोग डाइपोल मोमेंट निकाल लिए। डाइपोल मोमेंट में वॉल्यूम मल्टीप्लाई किया और पी का फॉर्मूला दिया हुआ था, तो हमें डाइपोल मोमेंट मिल चुका है इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में। ठीक है। अब डाइपोल मोमेंट पी मिल चुका है, और हमने ये सारा, ये जो फॉर्मूला है सारे, ये आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से आते हैं। पहला फॉर्मूला क्या कहता है कि जो चार्ज है दिस इज I/J W। आपको याद होगा बहुत शुरुआत में बताया था JW क्या होता है, JW इज d/dt। ठीक है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज चार्ज, Q इज इक्वल्स टू I/J ओमेगा। फ्रीक्वेंसी के डोमेन में लिखेंगे तो चार्ज करंट का रिलेशनशिप है यहाँ पे। डाइपोल मोमेंट और चार्ज का रिलेशनशिप है, तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, Q × DL जो डाइपोल का लेंथ होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी हम लोग थीटा वाला लिखे हैं। आपको देख यहाँ पे नोटिस करें, इसलिए यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे कार्टेशियन में दिया हुआ है XYZ में, और यहाँ पे R थीटा फाई वाला एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं। तो ये पुराना बुक रिकॉल कर लिया कि आपको याद होगा करके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन अगर हम लोग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखेंगे, यहाँ पे AZ फील्ड अगर एग्जिस्ट करता है तो थीटा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन J टाइम्स I dl
अपॉन 4 पाई ई पावर जे बीटा बाय आर ईटा बीटा साइन थीटा। ये जो बीटा साइन थीटा, ये जो साइन थीटा वाला टर्म आया है ना, ये इसीलिए आया क्योंकि हम लोग एक्स वाई जी से आर थीटा फाई में हम लोग मूव किए थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें एक्सप्रेशन पता है। स्कैटर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें, ताकि हम लोग बैक स्कैटर क्रॉस सेक्शन निकाल सके। तो स्कैटर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास आई जो था वो अननोन था, तो वो हमें चाहिए। और हमारे पास इधर क्यू और आई निकालने के लिए क्यू चाहिए, और क्यू हम पी से निकाल सकते हैं। अब ये सब्स्टिट्यूशंस करेंगे, रीअरेंज करेंगे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्रेशन है वो ऐसा आ जाएगा। तो ये बेसिकली इन तीनों चीज को आपस में सब्स्टिट्यूट करके ये यहाँ पे आई की जगह ये सब्स्टिट्यूट करना होगा, और फिर क्यू के जगह ये सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो ये करके इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पोलराइज ये पी के टर्म में आ जाएगा। और ये पी भी हमें यहाँ पे पता है इलेक्ट्रिक इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में। तो स्कैटर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में हमें मिल गया। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, हमें स्कैटर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में मिल गया सब्स्टिट्यूशंस करके। तो अभी आपको मान लेना है कि पोलराइजेशन दिया था। ठीक है, तो ये बॉटम में आप देखो नीचे कैपिटल पी दिया था, उससे स्मॉल पी निकाल लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्कैटर्ड है वो निकालना है, उसके लिए हमें करंट का इंफॉर्मेशन चाहिए। करंट का इंफॉर्मेशन हमें क्यू में पता है, और क्यू का इंफॉर्मेशन हमें छोटा पी से पता है। तो छोटा पी जो हमने बड़े पी से निकाला था वो यूज करके हमें स्कैटर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। और जो छोटा पी था वो इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में एक्सप्रेस किया हुआ था। तो हमें स्कैटर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में मिल चुका है। ये एस्टैब्लिश हो गया ये रीअरेंज करके। इसमें से किसी को कोई डाउट है क्या? ठीक है, डाउट नहीं है तो हम लोग मूव करते हैं, इसको आगे कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो कैपिटल पी नोन था, कैपिटल पी से स्मॉल पी निकाला हमने। अब स्मॉल पी निकालने के बाद हमने स्कैटर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला इन टर्म्स ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो सिग्मा बैक स्कैटर है दैट इज 4 पाई r स्क्वायर स्कैटर्ड पावर बाय इंसिडेंट पावर। अब जो स्कैटर्ड पावर है वो 1/2 ईटा नॉट इंटू ई स्कैटर्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर एट थीटा इक्वल टू पाई/2। हमने एक डायरेक्शन चूज कर लिया है, उस पे निकालेंगे हम लोग। तो स्कैटर्ड पावर मिल जाएगा हमें इंसिडेंट के टर्म में, क्योंकि हमें जो ई स्कैटर्ड था वो ई इंसिडेंट के टर्म में पता था। अब इंसिडेंट पावर निकालने के लिए 1/eta0 ई आई स्क्वायर हो जाएगा बस। ये पता चल गया। 4 पाई आसपर पता है, तो सिग्मा बैक स्कैटर मिल जाएगा। सिग्मा बैक स्कैटर क्या होगा, इनका रेशियो ले लेंगे, तो बैक स्कैटर क्रॉस सेक्शन मिल गया हमें। ठीक है, तो हमने क्या किया, बड़े पी से छोटा पी निकाला। स्कैटर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ये इक्विवेलेंट करंट पता होना चाहिए था। करंट के लिए हमें चार्ज पता होना चाहिए था। चार्ज के लिए हमें छोटा पी पता होना चाहिए था। और छोटा पी हमें इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में पता था। तो ई स्कैटर्ड हमने ई इंसिडेंट के टर्म में निकाल लिया। अब स्कैटर्ड पावर निकालना है, वो स्कैटर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में निकाल लेंगे। और इंसिडेंट पावर निकालना है, वो इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में निकाल लेंगे। सिग्मा बैक स्कैटर क्या होता है, दिस इज रेशियो ऑफ 4 पाई r स्क्वायर सिग्मा पावर स्कैटर्ड बाय पावर इंसिडेंट। हमें ये दोनों पता है, तो हमें सिग्मा जो बैक स्कैटर है वो ई एस बाई ई आई के टर्म्स में मिल रहा होगा, और ई एस हमें ई आई के टर्म में ही पता है। तो वो कैंसिल वैंसिल हो जाएगा और हमें सिग्मा बैक स्कैटर मिल जाएगा। तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, पहला वाला पार्ट ए निकल चुका है। इसमें से किसी को कोई डाउट है क्या कि सिग्मा बैक स्कैटर कैसे निकला? आप 2 मिनट स्लाइड को देख लो, क्योंकि हम स्टेप्स इसमें सारे लिखे हुए हैं जो भी सिग्मा बैक स्कैटर निकालने के लिए चाहिए था। कैपिटल पी से स्मॉल पी,
पीएस निकालने के लिए हम लोग ये छोटे पी से ईएस भी निकाल लिया, और छोटे पी को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ई इंसिडेंट के टर्म्स में हम लोग को स्कैटर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। सिग्मा बीएस निकालने के लिए ईएस से पीएस निकाल रहे हैं, ईआई से पीआई निकाल रहे हैं। ईएस हमारा ईआई के टर्म्स में था, रेशियो ले लिया पीएस और पीआई का, सिग्मा बीएस मिल गया। ओके, तो अब सिग्मा बैक स्कैटर मिल चुका है, डाउट नहीं है, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। बी पार्ट के लिए तो हमें बस वैल्यूज पुट करने हैं, सिग्मा बीएस में चीजें पुट करनी है। बीटा हमारा क्या होता है, 2 पाई बाय लैम्डा होता है। हमें एफ बताया है, एफ से लैम्डा बताया है, लैम्डा निकालने के बाद हम लोग बीटा निकाल लेंगे। स्मॉल बी पता है, बता दिया था क्वेश्चन में हमें, जो कि लैम्डा से बहुत छोटा है, तो सिग्मा बी एस। और परमिटिविटी भी हमें बता दिया था कि 50 है, तो 50 पुट किया सिग्मा पे, बी का वैल्यू पुट किया, बीटा का वैल्यू निकाल लिया लैम्डा निकाल के एफ से, और फिर यहाँ पे बी का वैल्यू फिर से पुट कर दिया। तो हमें क्या मिला, सिग्मा बी एस इक्वल टू 1.25 mm स्क्वायर, जो कि अगर आप टोटल वॉल्यूम, टोटल निकालोगे ना वॉल्यूम, सॉरी टोटल एरिया निकालोगे पाई बी स्क्वायर से, अगर इसका रेशियो करोगे तो बैक स्कैटर क्रॉस सेक्शन एकदम फ्रैक्शन है कि आपका टोटल ज्योमेट्रिकल सरफेस के, तो बहुत छोटा सा सेक्शन ही आ रहा है। और ऑफ कोर्स ये ध्यान रखना है कि हमने जो भी सॉल्व किया, ये दिस इज अ वेरी थियोरेटिकल, और एक्चुअली ये सॉल्व करने जाओगे तो दिस विल बी मोर कॉम्प्लेक्स। अभी क्या है, हम लोग बोल रहे हैं कि रेन ड्रॉप का डायमीटर इतना हो गया, या फिर, तो सबसे पहले तो अजम्पशन कि रेन ड्रॉप स्फेरिकल होता है, ये ट्रू नहीं है। रेन ड्रॉप्स बहुत ही वियर्ड शेप्स के होते हैं जरूर, और 3 mm भी होना जरूरी नहीं है, बड़ा छोटा जैसा भी ड्रॉपलेट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अजम्पशंस हैं, तो ये नहीं मान लेना है कि रेन ड्रॉप्स स्ट्रिक्टली स्फेरिकल होते हैं, या फिर वो लोग सिंगली एग्जिस्ट करते हैं कि एक एक ड्रॉप अलग अलग गिर रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो मीनिंगफुल कैलकुलेशन के लिए अगर आप रेन के लिए एक्चुअली करने जाओ, तो बहुत चीज़ें आपको कंसिडर करनी होगी, इंक्लूडिंग आपका रेनफॉल रेट, ड्रॉप साइज का डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि काफ़ी चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं आपस में एक दूसरे से। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो डेरिवेशन किया है, दिस इज नॉट एग्जैक्ट नॉलेज, एग्जैक्ट ट्रूथ नहीं है ये, दिस इज एन अजम्पशन के बेसिस पे कुछ कैलकुलेशन। ऑल्दो ये जो अजम्पशन है इक्विवेलेंट स्फेरिकल ड्रॉप का, दिस इज हैज फाउंड, हमें पता चला है कि ये बहुत क्लोज वैल्यू जरूर है जो एक्चुअली होता है उसके कंपैरिजन में। तो बस ये कॉशन है यहाँ पे कि ये जो भी वैल्यू है, ये नहीं मान लेना है कि यही होता है बारिश के केस में। थोड़ा बारिश के लिए और भी चीज़ें कंसिडर करनी होती हैं, बट ये जो वैल्यू है ये काफ़ी क्लोज है जो एक्सपेरिमेंटली हमने ऑब्जर्व किया है। तो ये हो गया आज का क्लास खत्म। आपको अगर इस जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया इसमें से कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम लोग फिर क्लास को एंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे फ्रिस ट्रांसमिशन इक्वेशन, और ट्राई करेंगे कि हम लोग वीकेंड तक में हम लोग ट्रांसमिट रिसीव सिस्टम्स का फिनिश कर पाए। किसी को कोई डाउट आज का डिस्कशन से या पुराने किसी भी डिस्कशन से, अदरवाइज हम लोग क्लास एंड करेंगे। ओके, डाउट नहीं है तो थैंक यू एवरीवन ज्वाइन करने के लिए, और नेक्स्ट क्लास सैटरडे को होगा।